Hello, yes. So, are you feeling relieved now that film is really released and it's been accepted very well by the audience? Hi, yeah, I'm actually relieved, but also feeling overwhelmed and just missing Sushant because he's not with me to enjoy and see everything right now. So it's very awkward. And Mhm. What is the best compliment you have received for the film? the best compliment that you just is Sushant live performance, and this ये film तेरी पहली film नहीं लगती है, doesn't look like your first film, and it's too real, too close to the reality. I think all this so many compliment I got from almost so many filmmaker and actors and producer and so many friends of mine have called me. And I can see the love from people they're writing the same thing. Mhm. But any particular compliment, like someone whom you admire, like there are a lot of filmmakers you actually look up to. There are so many filmmakers. I think everyone said that ki, I'm glad it doesn't look like a first film. Your strength was casting and the performances, and you held it, like you hold it very well. Mhm. So, are you ready now to change your Twitter handle from casting Chabra to director Chabra? I actually मुझे दो तीन लोगों ने बोला है अभी I'm not really thinking कि to change that. But I think I'm just too new to accept that fact. I would still prove more and more and more and more to people. Then I think I'll change my style. Mhm. Which one is your favorite scene from the film? My favorite, there are so many of my favorite scenes. The best one, which I think when he is lying down on his nani's lap and there's no dialogue. When he comes back from Paris, and if you remember that scene, there's no dialogue. मैंने के मम्मी पापा भी आते हैं just music and he just when he got to know कि मैं my cancer is back. That is my favorite scene because I remember shooting for that scene. I was too emotional. We were all very emotional when we were watching him performing like that. There were no dialogue, and I think he was the master of silence. How he handled that scene so well. I I was just seeing that scene today only in the morning of that watching that scene again. बट दिल्ली से जब आप चले थे और यहाँ पहुँचे और फिर अब यहाँ तक की जर्नी, तो आज जब पलट के देखते हैं इतने लंबे सालों का सफ़र, तो क्या लगता है ये सक्सेस कितनी आसान रही, कितनी कितना कुछ बोलते हैं कि बहुत कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है एक सक्सेस के लिए। सो आप अपनी जर्नी में अगर याद करें कि किन किन चीज़ों को या किन लम्हों को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा I या think uh, I think जब फिर दिल्ली से आते हो थिएटर बैकग्राउंड से आते हो तो जो and also you have to work 24/7 to I think I work morning to लेकर रात तक काम करना तो you have to and then कभी आपको कम टाइम मिलता है to spend time with your family your mom dad because in the process of जिसको लोग स्ट्रगल बोलते हैं प्रोसेस बोलते हैं the process you are so involved with your own self in this city that you forget your own people because you don't get time कि उनके साथ टाइम स्पेंड करना मौका मिलता है तो वो मेरे को लगता है कि सबसे एक लेकिन जब चीजें समझ में आती है चीजें बेटर होती है जब कंट्रोल में आती है देन यू अगेन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप योर ओन मतलब तो यू ओनली रनिंग इन दिस सिटी तो वो बहुत न्यू चेंज होता है एंड आई मेरे को बहुत अच्छा लगता है दैट जर्नी दैट फ्रॉम दिल्ली से आके यहाँ पर आना और जस्ट मेक योर मार्क यू आई फील लकी है आई थिंक जो काम करते रहना चाहिए फील मोर रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन एंड सस्टेन दैट और कीप वर्किंग फॉर दैट हम्म, अगली फिल्म की तैयारी कर ली है आपने? गिव मी सम स्क्रिप्ट actually abhi it's too soon for me to jump into another script because I'm too involved with this in Bechara and with Sushant. It'll take me some more time, maybe I don't know, a month or 2 months or maybe how many months I don't know. Once out of this uh, my system, I might think about my second film. Right now I'm not thinking about anything. बट डायरेक्टर एज अ नाउ यू आर अ सक्सेसफुल डायरेक्टर, सो डायरेक्टर कितना आप फ्रंट सीट पे होगा और कास्टिंग डायरेक्टर कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा आपकी लाइफ में? I think दोनों बराबर चलेंगे. I can't ignore casting because whatever I am today all because of casting. So casting and direction वो सब parallel चलेगी. Of course I can't leave casting. I'm already casting for so many films. I've just started from yesterday only I've started. So I think ये दोनों साथ साथ चलेंगी. I can't because ये भी मुझे बहुत पसंद है ये भी मुझे बहुत पसंद है मैं दोनों के साथ कोशिश करूँगा बैलेंस करने की
हाँ, लेकिन जब फिल्म बनाऊंगा तो obviously you have to take a break from casting. Like for Dil Bechara also taken a break from casting for like more than a year and a half. So now again when I make my next film again I'll take a break, but I will never leave casting. In fact for casting लेकर I have more plans. अभी मैं और सारे ऑफिसेस खोलने वाला हूँ to get more talent. अभी तो मैं और इसको extend करने वाला हूँ because I just got back to casting. So I'm going to see very differently now. So पहले कंपटीशन सिर्फ कास्टिंग में था, अब एज ए डायरेक्टर भी आपको फेस करना पड़ेगा। पता नहीं यार, I'm too small to get into and think about the competition. And मेरे तो जितने भी फिल्में कर सबके साथ मैं तो उनसे सबसे सीखा हूँ। मैं तो मुझे बहुत बहुत दूर हूँ थॉट से भी कि मैं ऐसा सोचूंगा। फिल्म की शूटिंग का पहला दिन आपको याद है दिल बेचारा का? बिल्कुल याद है। वो आज अब फिल्म याद होगी तो घर पे सब लोग टीवी देख रहे हैं, उसमें हंसी वाला सीन है, वो तो बात कर रहे हैं मजे, क्योंकि मैंने वो सीन इसलिए शुरुआत किया था कि एक सीन के अंदर सब फैमिली मिल जाएगी, स्वास्तिका, शाश्वता, सुशांत, संजना, सब एक सीन में तो आइस ब्रेक हो जाता है। और यू शुड ऑलवेज स्टार्ट अ फिल्म विद अ हैप्पी नोट because you can't start a film with a sad note. So मैंने वो तो पहला सीन रखा था जिसमें खुशी से सब टीवी देख रहे हैं, एक फिर वो सीन था, उसके बाद वो जब कि अब घर का फैमिली मैटर है, वो सिटिंग डिस्कसिंग, तो उससे स्टार्ट किया था। स्टिल रिमेंबर पहला वाइट शॉट था, चारों बैठे थे फिल्म के अंदर, उसके बाद हम लोग क्लोज पे गए थे। तो आई रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। आखिरी सीन था वो अंडे वाला सीन का, जो पैच वर्क हमको करना था। हम वो सीन बॉम्बे की फिल्म सिटी में हमने शूट किया था। जब वो अंडा मारने जाते हैं, वो आखिरी सीन था, आखिरी शॉट थे वो लोग, फिल्म सिटी में हमने शूट किया था। पिक्चर का वो लास्ट सीन था शूटिंग। जब फिल्म दो दोस्त मिलके बनाते हैं तो बहुत सारी प्लानिंग होती है फ्यूचर की भी, कि यार अगर ये ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा हुआ तो ये करेंगे। आई थिंक हम लोग अभी तक हम मई में बर्थडे में डिस्कस करते कि भाई आप कुछ काम करेंगे, बड़ा सा कुछ डिस्कस करेंगे। आई थिंक ऑफ कोर्स होता है, जब एक रिश्ता किसी के साथ रहता है तो आप हमेशा चाहते हो कि रिश्ता रिपीट हो, इन पर्सनल लाइफ में भी और इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ में भी। आप साथ काम करके चाहते हो कि ग्रो हो हर लेवल पे। आई थिंक हमने बहुत सारे प्लान बनाए थे, पर आई थिंक कहते हैं मेरी फिल्म में डायलॉग है कि हर सपना पूरा नहीं होता। तो आई थिंक ये इसकी जर्नी मुझे लगता है यहीं तक थी, इस रिलेशनशिप की जो जर्नी थी वो यहीं तक थी। आप इस बात से सेटिस्फाइड हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि सुशांत का जो इन अ वे, बिकॉज दिल बेचारा इज हिज लास्ट फिल्म, सो फेयरवेल बहुत अच्छा रहा, तो इस बात का आपको संतोष है? हाँ, मतलब ऐसा उसकी फिल्म उसके साथ जस्टिस किया, पीपल आर लाइक उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जा रही है। मतलब पीपल विल रिमेंबर उसके हर फिल्म के अंदर उसकी परफॉर्मेंस बहुत कमाल है। एंड इसमें उसकी अलग साइड लोगों को देखने को मिली, उसका जो डायरेक्ट ठहराव है, तो थोड़ी सी अच्छा लगा, क्योंकि पहले बहुत डर था, रिस्पॉन्सिबल फील कर रहा था कि हाउ पीपल वांट टू रिसीव दिस फिल्म। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कंट्री आफ्टर ट्रेलर सब लोग इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे। अगर फिल्म के अंदर अगर उसका मैं एक्सपेक्टेशंस को पूरी नहीं कर पाता तो शायद मुझे बहुत बुरा लगता, क्योंकि मेरे अंदर वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आती थी, बट डर रहता था। अच्छा, मैंने कुछ पिछली रात डाला था कि मैं आपसे बात करने वाला हूँ और सवाल हो तो आप भेजिए, तो मैंने कुछ सवाल लिए हैं, जिनमें से पहला सवाल है कि आर यू गोइंग टू रिलीज द फिल्म इन थिएटर्स अगेन as it's his last film, and was the film originally of 120 run time only? पहले सवाल का जवाब, आई थिंक दिस इज द टोटली स्टूडियो कॉल। आई थिंक आई ऑल्सो वांट कि कोई स्पेशल शोज मैं उनके फैन के लिए रखूँ या करूँ, लेकिन आई थिंक द स्टूडियो जब हम थिएटर खोलेंगे, ये सवाल का जवाब क्लोज टू द थिएटर व्हेन थिंग्स आर बेटर एंड नॉर्मल। आई थिंक ऑलरेडी इन डिस्कशन विद देम कि ऐसा हमको कुछ करना चाहिए। आई थिंक ऑन द स्टूडियो फॉक्सस्टार एंड डिज्नी, they take the final call. So I think in my, of course they're thinking, of course I'm also thinking in that direction. And second सवाल कि फिल्म की लेंथ जानबूझ के छोटी रखी थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि जब भी आप किसी ऐसी फिल्म पे काम करते हो बहुत इमोशनली बहुत हैवी होती है, तो आप एक चाहते हो कि वो फिल्म जो है वो बिना रुके खत्म हो जाए। बिकॉज क्या है कि जब आप लेंथ को ऐसे मेंटेन करके रखते हो तो आपको मालूम नहीं चलता कि फिल्म कब खत्म हो जाए। तो वो बहुत डेलिब्रेट डिसीजन था कि फिल्म को छोटा रखने का, बिकॉज जैसे ही आप किसी इमोशनल फिल्म को बड़ा करते हो तो आपको बहुत लेंथी लगने लगती है। तो ये डिसीजन बहुत क्लियर था। Why there are so many similarities between Dil Bechara and Sushant's real life?
मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जब फिल्म लिखते हो ये है कि जब आप व्हेन यू आई न्यू हिम सो वेल एज अ पर्सन, तो जब हम लिख भी रहे थे तो मुझे पता ही था कि तुषार कर रहा है, तो उसकी जो खुद की रियल क्वालिटीज है, चाहे वो जो वन लाइन्स है, तो वो ऑफ कोर्स आप एक एक्टर को दिमाग में रखते लिखते हो कि जब चाहे वो जोक है कि मुझे आंटी नासा जाना है, तो आई थिंक वो जब आपको पता है कि एक्टर परफॉर्म करने वाला है, और ऑल्सो ही जब ही परफॉर्म ही वाज सो रियल कि वो अगर वो अभी वो अनफॉर्चुनेट ऐसा लाइफ में हुआ है तो लोग उसको जोड़ना शुरू कर दे रहे हैं। एज अ राइटर जब आप फिल्म को लिखते हो, शशांक जब लिख रहे थे, हम जब डिस्कशन करते थे, तो आप ये सोच के कभी नहीं लिखते हो कि ये लाइफ में होने वाला है। पर यह है कि वो उस कहानी भी थोड़ी, जिस तरह की कहानी है वो भी थोड़ी एंडिंग बहुत ही सैड है, तो वो एंड से शायद लोग उसको ज्यादा रिलेट करते हैं। पर आप रियल लाइफ में जिस तरीके से फिल्म बहुत ही इमोशनल निकल के आती है, बहुत ही रुलाती है लोगों को, बहुत ही दिल के करीब से निकलती है, सो क्या आप रियल लाइफ में अगर फिल्म के जरिए हम आपको समझने की कोशिश करें तो क्या आप एक इमोशनल आदमी हैं? बहुत, फिल्म मैं इंडस्ट्री बहुत इमोशनल आदमी हूँ, तभी तो मैं शायद लोगों की बातों पे ज्यादा हर्ट हो जाता हूँ। मैं बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता हूँ, मैं बहुत ज्यादा, जब भी कोई ऐसी चीज मुझे दिखती है कि जो सच नहीं है, तो मुझे बहुत दुख होता है। आई एम हार्ट ब्रोकन मेनी टाइम इन दिस सिटी। तो आई थिंक वो हमेशा लगता है मुझे भी, क्योंकि वो मेरा, क्योंकि आप शायद लगता है कि व्हेन यू आर jumping around and cracking jokes, this and that doesn't mean that you don't feel bad. I also feel bad. I think as a person I'm very emotional. So I'm attached to my mom and dad. I'm attached to my family a lot. So I think I'm very, very, very emotional. Even अगर मेरा कोई दोस्त मुझसे किसी बात पे नाराज होता है, कि मिसअंडरस्टैंडिंग होते, तो I always want to solve that problem immediately. तो किसी का साथ भी हो, मैं immediately कोशिश करता हूँ कि क्या है मुझे बताओ। सुशांत को आप किस तरीके से याद रखना चाहेंगे? आई थिंक ये फिल्म तो मेरी जिंदगी के साथ अब जुड़ गई है, वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। फिल्म को तो अभी अलग करना मेरे से बड़ा मुश्किल है। एक तो पहली पिक्चर, ऊपर से सुशांत की आखिरी पिक्चर, ऊपर से ट्रेजेडी, ये तो जिंदगी भर कोई जाने वाला है नहीं। अच्छा, अच्छी चीजें जो है उसके अंदर जितना भी वक्त गुजारा है, वो चाहे वो पहला शूट आप लोगों के साथ ही हो, लेकिन अब तक जितनी दोस्ती क्लियर की है, वो सबकी जर्नी, यू ऑल्सो नो दैट वेरी वेल माई जर्नी विद इट। सो आई थिंक वो जो उसकी अच्छी बातें हैं, चाहे उसके साथ खेलना, खाना, घूमना, ट्रैवल करना, वो बहुत सारी बातें जो मुझे याद, और उसकी जो एक बात मुझे हमेशा हमेशा याद रहेगी कि भैया फिल्म इंडस्ट्री बहुत छोटी चीज़ है, लाइफ बहुत बड़ी है। क्योंकि जिस वो फिल्म को हम हमारे लिए सारी जिंदगी फिल्म बन जाती है, और वो हमें उसके लिए बहुत सारे ड्रीम्स हैं। वो चाहे वो नासा का ड्रीम हो, चाहे वो स्टार्स का ड्रीम हो, चाहे वो, मतलब उसके बहुत सारे ड्रीम थे। उसके लिए फिल्म हमेशा, उसमें एक चीज मैंने उससे सीखी है बहुत क्लियरली, कि ये लाइफ इससे भी ज्यादा बड़ी है। डोंट स्टिक टू फिल्म इंडस्ट्री। उनका कोई अनफुलफिल्ड ड्रीम जो आप कोशिश करेंगे लाइफ में कि उसको पूरा कर सकें, एज अ फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, एज अ ब्रदर? उसके बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स हैं जो शायद मैं कोशिश करूंगा पूरा करने की। पर सबसे बड़ी जो मुझे लगता है कि जो, और हमेशा वो हमेशा बच्चों को पुश करने में, सपोर्ट करने में बहुत हमेशा मोटिवेट करता था। मैं हमेशा ये कोशिश करूंगा कि मैं और जितना हो सके लोगों को पुश करूं, और टैलेंट को लाऊं, और उनको भी आगे लेके जाऊं, जो मेरा हमेशा से सपना रहा है। लेकिन अब वो सपना जो है मेरी प्रायोरिटी बन गया है, टू गेट मोर पीपल एंड गेट मोर टैलेंट टू दिस इंडस्ट्री। बिकॉज सो मेनी पीपल फ्रॉम टेलीविजन के लिए वो आइडल बन चुका था, कि वो टेलीविजन में जाकर सुशांत को देखते थे कि सुशांत फिल्म में इतना बड़ा बना है। अभी मुझे और ऐसे एक्टर को लाना है जिसके और ऐसे जो हमेशा उस लेवल तक पहुंचे, और उसको सबके उस टैलेंट को लेकर। बाहर से आए ऐसे और कौन से एक्टर्स हैं जिनका काम आपको बहुत अच्छा लगता है और जिनमें बहुत ज्यादा संभावनाएं दिखती हैं आपको? राजकुमार, मतलब ऑफ कोर्स राजकुमार, मतलब उसके साथ काम जैसे, बाकी ऑफ कोर्स नवाज भाई, मनोज भाई, हम सब इन बारे में इतने साल बात करते आ रहे हैं, कॉलेज के टाइम से उनको देखते आ रहे हैं, ग्रेट। राजकुमार उसका एक्टिंग आप देखोगे तो उसको भी मैंने इतने साल से देखा है। उसी पंकज त्रिपाठी जिसके काम में मैं बहुत दीवाना हूँ। मैं मतलब आयुष्मान खुराना, मुझे जिस तरह से उसके जर्नी, जैसे से चीजों को समझता है, वो कर रहा है, वो बहुत बहुत। लुक एट कार्तिक, मेरे लिए बहुत हमेशा हमेशा लगता था कि अब जो जैसा उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है एज अ पर्सन, एज एन एक्टर, और जिस तरह चीजों को उसने डील किया, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद ऑल ऑफ दैट। आपके जैसे एक जेरी पलावत, रसिका दुग्गल, ये सब, ऋचा चड्ढा, दे सच ग्रेट एक्टर्स।
These are great actors. आपकी फिल्म के I also honest, sorry to cut you, I also love like Kriti Sanon. उसको भी मैंने देखा, उसके जर्नी, वो कैसे कहाँ से कहाँ तक अपने आप को एज एन एक्टर उसने इम्प्रूव किया, कैसे उसने चीजों को हैंडल किया और कैसे उसने अपने आप को एज एन एक्टर इम्प्रूव किया. आई थिंक आई रियली ह्यूज एडमायर ऑफ कृति's वर्क. आपके फिल्म के रिव्यूज में एक मेंशन आ रहा था कि आनंद फिल्म की याद दिला देती है एक पर्टिकुलर उस पे मोड पे, तो इसे ऑब्वियसली एक फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है. यार बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है. बहुत ऑकवर्ड लगता है कि इतनी बड़ी फिल्म के साथ आपकी फिल्म के साथ आपको कंपेयर भी करते हैं, उसका सीन के बारे में बात करते हैं, मेंशन भी होता है, बिकॉज आप हर उस हिंदुस्तान की सबसे फेवरेट फिल्म है आनंद. जिसने वो फिल्म देखी है, मतलब मैंने तो कम से कम 50-100 बार तो देखी होगी. जब भी टीवी में आई है, ऐसे वही फिल्म है जो जब भी आप देखते हो, कहीं से भी देखना शुरू करो, यू कैन अटैच टू दैट फिल्म. तो बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग था जब बहुत से लोगों ने ये मेंशन किया. तो डर लगता है कि भैया ये बहुत बहुत बड़ी बात है, इससे तो अपने आप को दूर रखो. फिल्म इंडस्ट्री इस लॉकडाउन में एक तरीके से ठहरी हुई है, लेकिन धीरे धीरे अपनी स्पीड पे लौट रही है. तो क्या आप भी काम पे लौट रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कास्टिंग? क्या प्रोसेस जी स्टार्ट? बिल्कुल लौट रहा हूँ काम पे, बिकॉज मुझे इमीडिएटली अपने आप को थोड़ा पहले इतना सब कुछ लाइफ में हुआ, फिल्म जितना हो, मुझे जल्दी से जल्दी अपने आप को बिजी रखना है. और बहुत सारा कास्टिंग काम शुरू है, जो हमने ऑनलाइन शुरू कर दिया. बहुत सारे फिल्मों की कास्टिंग जो हमने शुरू कर दी है, बहुत सारा काम है. और जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे टैलेंट को भी ढूंढना है, तो हम तो शुरू हो चुके हैं. मेरा ऑफिस जो है वो बहुत ही लिमिटेड स्टाफ के साथ 10 लोगों के साथ हमने ऑफिस शुरू कर दिया है. पर हम लोग अभी इन पर्सन ऑडिशन नहीं कर रहे हैं, सब हम ऑनलाइन ऑडिशन मंगा रहे हैं, सब सेल्फ टेप मंगा रहे हैं. तो काम तो शुरू करना ही है, क्योंकि धीरे धीरे मुझे लगता है अगस्त सितंबर अक्टूबर और नॉर्मल हो जाएंगे, शूटिंग स्टार्ट हो जाएंगे. तो यही सब शुरू कर दिया है. दिल बेचारा और सुशांत के फैन से आप क्या कहना चाहेंगे इस मोड़ पर, जब बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी बातें हो रही हैं उनकी जिंदगी को लेके? आई थिंक मैं ये कहूंगा कि वो आपने उसको इतना प्यार दिया है, उसको जस्ट लेट हिम रेस्ट इन पीस. जस्ट उसको और प्यार दीजिए, और उसका प्यार जो है वो हमेशा के लिए बरकरार रहे. ऐसा नहीं है कि हम अभी बरकरार है, क्योंकि वो हमेशा के लिए बरकरार है, जिंदगी के लिए प्यार बरकरार रहे. और जितने प्यार आपने उसकी फिल्म को दिया है, उस हर फिल्म को दीजिए जो फिल्म जो है वो डिजर्व करती है. हर उस एक्टर को दीजिए जो जेन्युइन रिस्पेक्ट और प्यार को डिजर्व करता है. तो ये मेरी दुआ है सबके साथ. आपका फिल्म का फेवरेट डायलॉग कौन सा है दिल बेचारा का? मेरा फेवरेट डायलॉग तो वो जो मुझे हमेशा बार बार रेजोनेट करता है, उससे पूछा जाता है कि हम कौन फिल्म देखना बहुत मिस कर रहे हैं, तो बोलता है कि मुझे भी मिस करोगे क्या. तो मतलब वो डायलॉग मुझे बार बार बॉदर करता है. ऐसे तो बहुत सारे डायलॉग है जो मुझे लगता है कि जो मुझे बहुत सारे फेवरेट हैं. जन्म कब लेना है, वरना कभी हम तय नहीं कर सकते, लेकिन कैसे जीना है हम तय कर सकते हैं. इस तरह के बहुत से लाइन, लेकिन वो जो मुझे भी मिस करोगे, वो बहुत ज्यादा मुझे बॉदर करता है. थैंक यू. थैंक यू सो मच रघु भाई. थैंक यू. थँक्यू रघु. किती पर्सेंट 2% काढणार की 10% काढणार?